ایک ایک پتوں پر تمہاری ظلم اور زیادتی اور آتنکوادیت کی داستان تحریر ہے. ہم جو پتا اٹھاتے ہیں اس کے نیچے یہی چند فسطائی طاقتیں نکلتی ہیں. تم نکلتے ہو. مسلمان نے کبھی دیش کے ساتھ غداری نہیں کی ہے. ہندوستان کا نقشہ کس نے بیچا؟ تم نے بیچا، ہم نے نہیں بیچا. بلیدان ہم نے دیے ہیں، قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، اور 850 برس تک وہی ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. لیکن 50 برس میں ہگ موچ کے تم نے برابر کر دیا. پورا نام مٹی میں ملا دیا. تم نے سونے کی چڑیا کو بیچ کر کے کھا گئے. تم سے حکمرانی نہیں ہوگی، تم امن و شانتی نہیں قائم کر سکتے. مسلمانوں کے کا اتہاس کبھی کسی کے اوپر ظلم کرنا نہیں سکھاتا. اور اگر چند شرپسند ہو جائیں تو چند کا حکم الگ ہوتا ہے، سب کے اوپر وہ حکم لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اسلام کہتا ہے کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا. اگر چند لوگ شریر نکل گئے، چند لوگوں نے کچھ ادھر ادھر بدماشیاں کر لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا اسلام بدنام ہے اور پورا اسلام اسی طرح کا. لیکن گاندھی جی نے بہت پہلے کہا تھا کہ یورپ یہ خوف زدہ ہے کہ اگر اس کے اپنے مسلمان ہو گئے تو ہم سری کا دعویٰ کریں گے، مسلمان بڑھتے جائیں گے، کیونکہ عیسائیت کو خطرہ ہے کہ یہ باطل دین ہے، محرف دین ہے، اور عیسائی بڑی جلدی مسلمان ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ اللہ کو مانتے ہیں. ہندو تو خیر ہو سکتا ہے ٹامک تو یہاں مارے وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے جیسے بھٹک رہے ہیں، لیکن آج یورپ کے اندر جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے واقعی اس کو خطرہ ہے. اس لیے اس نے سوچا، اور یہ مسٹر غلام بش صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فلسطین کی آزادی کا اعلان کرنے والے تھے نا، یہ اعلان کرنے والے تھے کہ فلسطین ایک ملک بنے گا. یہودیوں نے سوچا کہیں ابا نے اعلان کر دیا تو بیٹوں کے اوپر تو کیا گزرے گی، کہا گرا دو، اس کی ناک مٹی میں ملا دو. ذلیلوں نے وہ دونوں بلڈنگیں مٹی میں ملا دی. اس کو کچھ نہیں سوجھا تو اس نے سیدھے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے کیا ہے. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی تمہارے پاس دلیل ہے. صرف داڑھی والوں کو دیکھ کر تمہارا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، تمہارا پجامہ خراب ہو جاتا ہے داڑھی والوں کو دیکھ کر. داڑھی والوں سے اتنے ڈرتے ہیں، اس قدر ارے جاؤ، اگر تم اتنی چھوٹی داڑھیوں سے ڈرتے ہو تو انشاءاللہ ہم اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھ دیں گے تاکہ تمہیں اور ڈر لگے. یہ داڑھی نہ ہوئی کوئی ایٹم بم ہو گئی. ان کو اتنا خطرہ، اتنا ڈر لگتا ہے. اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے. مسلمانوں تم کبھی مروب نہ ہو. ہم نے سنا ہے کہ باقاعدے کوئی سیریل چلائی جا رہی ہے حقیقت کے نام پر یا فضیحت کے نام پر، اس میں ایسی سینریاں دکھائی جا رہی ہیں جو باقاعدے مروب کر دینے والی. مروب نہ ہونا کبھی. ان تنصر اللہ ینصرکم. ارے تم اگر اس اسلام کے لیے آگے قدم بڑھاؤ گے اللہ تمہارے پیچھے تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے آگے آگے. ہاں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج بعض اندھے نا عاقبت اندیش لوگ اسلام جیسے عظیم رحیم شفیق جس نے انسانیت کو کی معراج جس نے عطا فرمائی، جو اسلام دھرم کو جو اسلام لوگوں کو امن و شانتی دینے کے لیے آیا تھا، آج اسے دہشت گرد کہتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے؟ آپ نے قرآن اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ چند آیتیں 14-15 ہیں، ان کو 24 آیتیں قرآن سے نکالو. قرآن، ارے تم ایک آیت نکالنے کی بات کر رہے ہو. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر قرآن کے ایک حرف کو تم نے بٹھانے کی کوشش کی تمہیں ساری دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے گا انشاءاللہ. تم قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ قرآن تمہارے باپ کی اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سورداس کی لکھی ہوئی رامائن ہے. یہ قرآن اللہ کی آسمانی کتاب ہے جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی اللہ ہے. تم بھول گئے ہو، ہم تمہیں سبق یاد دلائیں گے اور اس کا طریقہ میں ابھی بتاتا ہوں میرے عزیزوں. اسی طرح سے میرے عزیزوں، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں میں کہاں کہاں تک اس کو آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں رکھوں. اسلام نے احترام مسلم ہی نہیں بلکہ ساری سنسار کے انسانیت کو احترام کرنے کا، ان کے اکرام کرنے کا درس دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسانیت کے حقوق کی تعلیم مسلمانوں کو دی ہے. انسان کے 7 حقوق ہیں. سنو، یہ کسی تمہیں کتابوں میں نہیں ملیں گے، یہ ملے گا تو اسلام میں ملے گا. 7 حقوق ہیں. نمبر 1 انسانوں کے جانوں کی حفاظت. نمبر 2 انسانوں کے مال کی حفاظت. نمبر 3 انسانوں کے آبرو عزت کی حفاظت. نمبر 5 مذہب اور رائے کی آزادی کی حفاظت. اور نمبر 6 ضروریات زندگی کا انتظام اور کفالت کرنا. اور نمبر 7 خواتین عورتوں کے ناموس اور عزت اور ان کے آبرو کی حفاظت. یہ 7 حقوق ہیں انسانوں کے. یہ اسلام سکھاتا ہے اور اسلام اس کے اوپر عمل کر کے دکھلاتا ہے. اور آج مملکت سعودی عربیہ اس کی تازہ مثال ہے.
देख लो, जान की हिफाजत है, माल की भी हिफाजत है, इज्जत व आबरू की भी हिफाजत है, औरतों की भी। आज कहते हैं औरतों को आजादी चाहिए। अरे औरतों, मेरी माँ बहनों और मेरे दोस्तों, औरतों को आजादी की नहीं, औरतों को तहफ्फुज की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तहफ्फुज की जरूरत है। औरत महफूज रहेगी, वो मलिका और रानी बन के रहेगी। लेकिन जहां औरत आजाद हुई, हर एक की लौंडी और उसकी गुलाम, उसकी गुलामन बन जाएगी, रखायल बन जाएगी। औरत रोड पे निकलेगी, जो भी पैसे फेंकेगा, कोई भी पिस्तौल, कोई भी बंदूक की नाल पर अपनी रखायल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये रखायल ज़दा लोग, अय्याशी के बिस्तरों पर करवटें लेने वाले ये लोग, ये औरत को आजादी का नारा ले रहे हैं। औरत आजाद हो जाए ताकि अपनी बीवियों को छोड़कर गैरों की बीवियों की बाहों में बाहें मिलाकर ये ऐश और इस्तरत करें। हम इनको इस तरह से गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। बहैसियत मुसलमान हम इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ तलवार बन करके खड़े होंगे। समझ रहे हैं? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम औरतों के तहफ्फुज की का हुक्म देता है। इस्लाम आज औरतों को आजादी की नहीं, बल्कि औरतों को तहफ्फुज की जरूरत है। नबी करीम और कुरान ने तमाम बनी आदम को, चाहे रामदेव हो, चाहे रामचंद्र हो, चाहे गोपाल हो, चाहे अब्दुल्ला हो, चाहे अब्दुल रहमान हो, चाहे वो फिलिप हो, चाहे जैकब हो, चाहे वो शारून हो, चाहे कोई भी हो, यहूदी हो, नसरानी हो, बुद्धिस्ट हो, जरदश्ती हो, इस्लाम ने कहा लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को शर्फ अता फरमाया, हमने बनी आदम को इज्जत अता फरमाई है। और किसी धर्म में है ये इज्जत? तुमने बनी आदम को गधे और कुत्तों और बिल्लियों से भी बदतर समझा हुआ अपने धर्मों में। लेकिन इस्लाम यह है कि जिसके अंदर इंसानियत की इज्जत, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, यह हमारा धर्म सिखलाता है, यह हमारा धर्म सिखलाता है। इसी तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था, ला फज़ल ले अरबीन अला अजमी वला ले अजमी अला अरबी वला ले अस्वदा अला अहमर वला ले अहमर अला अस्वद कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। किसी अरबी को अजमी पर कोई मकाम नहीं, और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर और न किसी गोरे को काले पर कोई अजमत है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए। हम सब मिट्टी की औलाद हैं, हम सब में आदम की औलाद हैं और हम सब मिट्टी से बनाए गए हैं। और आज हमारे यहां क्या हो रहा है? अक्सरियत के बलबूते पर मुसलमानों को दिन रात जगह जगह कत्ल करना, जवान लड़कियों को अगवा करना, हत्ता कि बूढ़े और बूढ़ियों को भी ये नादान, ये दहशतगर्द, ये आतंकवाद उन्हें भी ईजा पहुंचा पहुंचा करके बूढ़े और बूढ़ियों को भी ये कत्ल करते हैं। अल्लाह कातलहुमुल्लाह, अल्लाह इन्हें कत्ल फरमाए। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये धर्म के नाम पर कर रहे हैं। चरिंद परिंद कुत्ते तक को मार देने में रुकावट है हमारे देश में, मगर अगर कोई मिस्कीन समझा बचा तो ये बेचारा मुसलमान है। इसको लूट कर, मार कर, कत्ल करके, इसके घरों में घुसकर, इसकी जायदादों को आग लगाकर और इसको उनके बीवी बच्चों के सामने कत्ल करके और उसके ऊपर तुर्रा ये कि हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं। इस तरह से तुम अमन और सुकून नहीं ले सकते हो सांस। आज तक मुसलमानों की तारीख इस इल्जाम से पाक है कि मुसलमानों ने भी कभी किसी गैर मुस्लिम को मार मार कर मुसलमान बनाया हो या किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ाया हो। हकीकत यह है कि अल्लाह को वो दीन पसंद ही नहीं है जो जोरों जबरदस्ती से और जबर से लिया जाए। अल्लाह ने फरमाया ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अल्लाह फरमाता है वलौ शाअ रब्बुका लआमन फिल अर्द कुल्लुहुम जमीअन, अगर अल्लाह चाहे तो रूए जमीन पर कोई काफिर बाकी ना बचे, सारे के सारे मोमिन हो जाएं। अफअंत तुकरिहु अन्नास हत्ता यकुनु मुमिनीन, तो क्या तुम जोर और जबरदस्ती से लोगों को मुसलमान मोमिन बनाओगे? हरगिज नहीं। इस्लाम जोर और जबरदस्ती नहीं चाहता। इस्लाम अमन और शांति की तालीम देता है और जो मुसलमान हो जाते हैं उन्हें अपने गले से लगाता है। तुम्हें हसद नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। आज जगह जगह फितना फसाद मचाकर मुसलमानों को टेररिस्ट, दहशतगर्द और क्या कहते हैं दुनिया भर के अलकाब दिए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में आखिरी बात में मैं कहकर अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं, हम मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी, हम मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है? मुसलमानों, तुमने कभी सोचा है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है? बोलो अल्लाह अकबर। हम मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? हम मुसलमानों की जिम्मेदारी यह है, सुनो, अगर कोई नंगा नाच नाचे तो हमें नंगा नाच नहीं नाचना है। हमारे इस्लाम ने हमें क्या तालीम दी है? हमारे इस्लाम ने हमें जो तालीम दी है वो ये तालीम दी है कि अगर वो नंगा नाच नाच रहे हैं तो तुम क्या करो? अल्लाह अकबर। कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने
इस हकीकत को बड़ी अच्छी तरीके से बयान फरमाया है। और हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुनिया के सामने पेश किया है। मेरे अजीजों, ये लोग अमन और शांति के मुतलाशी हैं और तुम अलम के अलमबरदार हो। तुम अमन और शांति के अलमबरदार हो, तो तुम्हारा शेवा क्या होना चाहिए? जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तकरीबन 13 बरस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की कि नहीं की? कि नहीं की? हमदर्दी एक ऐसी चीज होती है जिससे आदमियों के दिल जीत लिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से हमदर्दी थी, अपनी उम्मत से दुश्मनी नहीं थी। मैदान ताइफ का वो मंजर याद करो। मैं वाकया नहीं बतलाना चाहता, इशारा देना चाहता हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया गया। फरिश्ते आए, कहा हुक्म करें इस बस्ती को हम नीस्तो नाबूद कर दें। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ऐ अल्लाह ये नहीं जानते। हजरत अम्मार इब्न यासिर, हजरत सुमैया, नंगे मां और बाप और बेटे नंगे खंभों में बंधे हुए और जालिम जुल्म कर रहा है। अबू जहल सता रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह के नबी जुल्म हो रहा है। हजरत क्या फरमाते हैं? सब्रन या आले यासिर, ऐ आले यासिर सब्र करो, एक दिन आएगा हम तुम जन्नत में मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। ओ मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवे को सामने रखते हुए हजरत बिलाल को याद करो, जब मक्के के अंदर उन्हें घसीटा गया और उनको ईजा पहुंचाई गई। हजरत खुबैब को याद करो, खब्बाब की नारत को याद करो, जब दहकते हुए अंगारों पर सुलाया गया। ये मनाजिर सामने रखते हुए फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक आसमान की तरफ बद्दुआ के लिए नहीं उठ रहे हैं। ऐसी सूरत में हम तुम्हें एक फार्मूला बताए दे रहे हैं और मैं जगह जगह इस फार्मूले को पेश करता हूं और मुसलमानों के सामने रखता हूं। क्या मुसलमानों, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि तुम भलाइयों का, अमन और सलामती का झंडा लेकर तुम दुनिया के सामने अमन और सलामती का पैगाम पेश करो। तुम दुनिया को प्रेम मोहब्बत सिखलाओ। तुम इन हैवानों को इंसान बनाने के लिए तालीम दो। तुम मुनकरात के सामने, चाहे वो शिर्क हो, चाहे वो जुल्म हो, चाहे वो लूट खसूट हो, चाहे चोरबाजारी हो, चाहे किसी के ऊपर भी जुल्म हो, किसी जानवर के ऊपर भी जुल्म हो, किसी इंसान के ऊपर जुल्म हो, तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नमूना याद रखना चाहिए कि जब मक्के की धरती पर यमन से आए हुए एक ताजिर के ऊपर जुल्म होता है तो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूमों के इतने बड़े मददगार थे कि कुफ्फारे मक्का को भी कहना पड़ा कि अगर तेरी इस मक्के के अंदर कोई मदद कर सकता है अबू जहल के खिलाफ, तो एक ही जात है, एक ही हस्ती है, वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उसके दुश्मन हैं, वो हमारा दुश्मन है। जाओ तुम उससे कहोगे, वो तुम्हारे जुल्म की दास्तान सुनकर तुम्हारा हक अबू जहल से दिलवा देंगे। वो शख्स नबी के पास आता है, मुसलमान नहीं है, इस्लाम के दामन में नहीं आया है, नबी के सामने अर्ज करता है फला ने मेरा माल लिया है और अभी तक उसने हमारे पैसे नहीं लौटाए हैं, दीनार और दराहिम नहीं लौटाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं। अबू जहल ने, लोगों ने अबू जहल के पास रहनुमाई की थी कि अबू जहल के पास उसका माल है। अब लोग मजाक करने के लिए, ठट्ठा उड़ाने के लिए दौड़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कि अभी देखो अबू जहल इनको कैसे लथाड़ता है, कैसे मोहम्मद की तमस्खुर उड़ाता है, मोहम्मद को जलील करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं। अबू जहल दरवाजा खोलता है, कहता है क्या बात है? कहा तुमने इस आदमी का माल लिया है, तुम इस आदमी अभी इसी वक्त हक दो। अबू जहल भीगी बिल्ली बन करके कहता मैं अभी लाता हूं। फौरन ला करके उसका जो है बदला, उसका हक उसको देता है। वो शुक्र अदा करके चला जाता है। जब अबू जहल अपनी मजलिस में पहुंचता है तो लोग कहते हैं तुम तो बड़े शेर बनते थे, तुम कहते थे मोहम्मद को हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मोहम्मद तुम्हारे दरवाजे पे गए, तुमने उसके साथ जिल्लत नहीं की, भीगी बिल्ली बन गए। अबू जहल कहता है अल्लाह की कसम है, जिस दम मोहम्मद ने दस्तक दी और जब मैंने दरवाजा खोला, मैंने मोहम्मद के पीछे एक बड़ा ही खतरनाक और एक बड़ा ही भयानक मैंने मुंह खोले हुए ऊंट को देखा। अगर मैं ना करता तो वो ऊंट मुझे चबा जाता, इसलिए मैंने हां कर दिया। ये थी वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वो मजलूम कोई जरदश्ती हो, कोई ईसाई हो, कोई हिंदू हो,
कोई भी मजलूम है, मुसलमान को चाहिए कि उस मजलूम की मदद करे, अपने मजलूम भाइयों की, किसी गैर के मजलूम भाइयों की, कोई भी हो उनकी मदद करे, जालिमों के सामने तलवार बन करके खड़ा हो। तो मेरे अजीजों, आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि मुनकरात के लिए हम खड़े हों, मुनकरात को रोकने, मुनकरात और बेहायों को मिटाने के लिए, हम देश को पवित्रता देने के लिए